Good morning, students. Welcome back to the online sessions of Science Class 8. I hope you and your family will be safe in these pandemic situations. So, I just requested to you stay home and stay safe. And whenever it should be necessary to have go outside at home, use a mask, covers, take sanitizers with you, and always be wash your hand at a specific time of interval. So, stay home and stay safe. Don't go into the crowded places. The students, today we are discussing about the new chapter in your syllabus, that is a chapter number 16, that is called light. So first of all, we know that this world is largely known through the specific formation of senses. Our body has generally controlled the different type of senses in which we have to slide most of the important aspects in our body, which we have to move through the sense. So through it we see the mountains, rivers, trees, planets, chairs, people, many other things around of us that will be seen through our specific eyes. So we also see like a clouds is there, rainbow is there, birds flying in the sky. Also we see that like the formations of the stars. All are the topic that we have to be discussing into the previous sections. Also, you have also seen some of the words which should be written on your textbook, or maybe how this type of mails that should be possible. So what are these things that is makes too easy to things visible very easily? So first of all, light is a something that everyone is familiar with. Light is that kind of word, or maybe a substance, or maybe a specific things which we have, or maybe everyone that is familiar with these things. So it comes from many of sources. Light is generally comes from the many of sources. The main source of light is generally begin with the sun. That is generally being with the sun. So it is only the light that makes object visible to us. Whatever the object that is around of us, that can be easily visible through the light. If light is not available, you cannot be see any object clearly. For just suppose that you are sitting in a room. You are also familiar with your room, where is the object that should be placed. And suppose the light is gone at the night time. So it generally create a very vast situations. It cannot be seen an object where it can be put. So objects cannot be seen without the light. So light is generally a main of the object which is generally useful to be familiar to us, and also it should be easy to be visible all the objects. So light is in one of the form of energy. Light is what? It is one of the form of energy which generally create the sensations in your eyes. Generally sensations that can be created in your eyes through the formation of light. So when the light is implemented to any object and which can be reflected and rained onto the retina, then you can be see the objects very clearly. So in the previous classes, maybe in the 7th standard, you have already learned about some of the rules of reflection of light from rough surfaces and smooth surfaces. How the light will be reflected or refracted by the smooth surfaces. So let us generally we have to detailed descriptions about the reflection of law that is given into this topic. Okay, what is the reflection of law? So after implementation, यहाँ पे एक word दिया है कि after striking the mirror, the ray of light is reflected in another direction. The light ray which strikes ray surfaces or maybe any surfaces is called incident ray. And the ray that comes back from the surfaces after the reflection is known as the reflected ray. Like it is a simple form, okay, the bouncing back of the light. The bouncing back of the light from the surface of an object is called as a reflection of light. अगर लाइट एक किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होता है और इंसिडेंट होने से वहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर से वो रिटर्न यानी कि बाउंस बैक करता है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं? दैट यू कॉल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इट इज अ सिंपल फॉर्म, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो लाइक व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं, ठीक है, व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और एनी शाइनी मेटल, किसी भी शाइनी मेटल के सरफेसेस के आगे या मेटल के आगे अगर आप खड़े होते हैं, सो वी कैन नॉट सी ओनली अवर इमेज. आप केवल अपनी इमेज को नहीं देख सकते हैं, बट इमेज ऑफ ऑल थिंग्स विच इज अराउंड अस. हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं उन सारी चीजों को हम देख सकते हैं. नॉट ओनली आप मिरर के सामने खड़े रहेंगे तो क्या मिरर में केवल आप ही दिखेंगे? नहीं, आपके आसपास का जितना भी ऑब्जेक्ट्स होगा वो मिरर के अंदर कैप्चर हो रहा होगा, तो यू कैन बी सी द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इमेजेस इनटू द मिरर्स. सो दिस हैपेंस बिकॉज द मिरर or the metal surfaces
जो एकदम शाइनी मेटल सर्फेसिस है, दैट जनरली यूज टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ वहां पे यूज होता है, दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जो सारे ऑब्जेक्ट्स वहां पे हैं और जहाँ पे लाइट उनका इंसिडेंट हो रहा है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आते हैं, इसके वजह से क्या होता है, ये पूरा चीज आप देख सकते हैं। सो ये पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक फिगर आपको यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करके दिया हुआ है। इस फिगर के अंदर आप देखिए, एक नॉर्मल लाइन जो यहाँ से ड्रॉ हो रही है, उस नॉर्मल लाइन को आप, इट इज जनरली कॉल्ड एज ए नॉर्मल, वो जो होता है वो नॉर्मल से हम कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज जनरली कंसीडर एज ए नॉर्मल एंड इट इज जनरली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर एट द पॉइंट ऑफ O। किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट O से उसको आप एक कह सकते हो कि इट इज जनरली नॉर्मल, इट इज पॉइंट टू परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर टू द ऑल द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O। अब जो रे ऑफ लाइट जो दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन या किसी भी ऑब्जेक्ट में से जो लाइट ऑफ रेज वहां पे आ रही है, द लाइट ऑफ रेज विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट that generally falls on the surface of mirror is called incident ray। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स वहां से जो लाइट ऑफ रेज जो आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर से और वो अगर मिरर के सरफेस इस पे अगर इंसिडेंट होता है तो उस रे को आप इंसिडेंट रे कहेंगे। मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस इस पे जो लाइट ऑफ सन इंसिडेंट करता है, यानी कि वहां से नीचे जब वो सरफेस इस पे आता है, लाइक दिस इट इज अ सरफेस ऑफ अर्थ और लाइट ऑफ रेज यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनके बीच में दो अपोजिट रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसको आप इंसिडेंट एंगल कहते हो। सो वैसे ही जो रिफ्लेक्शन होता है, द रे ऑफ लाइट दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, उसको आप क्या कहोगे, रिफ्लेक्टेड रे कहोगे। मान लीजिए स्मूथ सरफेसिस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और रफ सरफेसिस पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो जो लाइट ऑफ रेज जो रिफ्लेक्टेड होते हैं मिरर के सरफेसिस से, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जा सकता है। और जो एंगल फॉर्म्ड होता है, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आप क्या कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहोगे। और दो जो यहाँ पे जो फॉर्मेशन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप किसको कहोगे, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। जो रे रिफ्लेक्टेड हो रहा है टू द नॉर्मल वो रिफ्लेक्शन है और इंसिडेंट हो रहा है टू द नॉर्मल, उसको आप इंसिडेंट एंगल्स कह सकते हो, जनरली कॉल्ड एज द इंसिडेंट एंगल्स। जनरली यहाँ पे आप फिगर देखिए, इस फिगर के अंदर R जो है, R जनरली डिस्क्राइब फॉर द रिफ्लेक्शन एंड I दैट इज इंप्लीमेंट फॉर द इंसिडेंट। एरो देखिए, वो एक सरफेस दिया है, उस सरफेस पे इंसिडेंट यानी एरो देखिए वो इंसिडेंट हो रहा है उस अर्थ के सरफेस पे, स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर दिया है वो नॉर्मल है और वो स्पेसिफिक पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है विद द नॉर्मल, उसको आप एक एंगल बन रहा है जिसको इंसिडेंट एंगल कहेंगे। और वो सरफेस इस पे स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक कर रहा है, वो रे वहां से, उसको आप रिफ्लेक्टेड रे कहोगे। तो दैट इज जनरली कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वहां पे हम जनरली कह सकते हैं इस चीज को। तो आपको जैसे पहले भी मैंने समझाया कि सन एज द सोर्स ऑफ लाइट इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन जो अलग अलग फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। तो आप अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट का वहां पे यूज करके आप इस सारे चीजों को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेशन उसके अंदर यूज किया जाता है। अभी ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो जनरेटेड होता है उसमें एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, दैट हैविंग अ स्पेसिफिक फॉर्म, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी ये जो फिगर्स जो दिख रही है, जैसे अभी आपको आगे आगे समझाया इस फिगर के बारे में, इस फिगर कहीं अगर हम देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट या सरफेसिस है, उस सरफेसिस के कंसिडरेशन अगर आप कहेंगे तो ये जो I और R, थीटा आप उसको कहेंगे, थीटा इज जनरली रिप्रेजेंट फ्रॉम द एंगल, थीटा I इज इक्वल टू थीटा R आप कह सकते हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि जितना डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो फॉर्मेशंस क्रिएट करते हैं। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप्स है। पहला टाइप है कि जो इंसिडेंट रे होता है, द इंसिडेंट रे and the reflected ray with towards normal if the reflecting surface is always lie into the same plane। ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट के जो रेज होते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, which always be lies into the same plane, एक ही प्लेन के अंदर वो रहते हैं। दूसरा जो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो जो लॉज है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जनरली आप देखते हैं एकदम स्टेबल वाटर होता है, लाइट इन स्टील वाटर,
एकदम स्टिल वाटर पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और उसके आसपास जैसे मान लीजिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स या ट्रीज है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको लाइट के अंदर देखने को मिलता है, बिकॉज वाटर इज जनरली वर्क एज लाइक अ प्लेन मिरर, इसीलिए सारी इमेजेस वहाँ पे जनरेट हो लाइक अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये सारी चीजें वहाँ पे इंप्लीमेंटेशन होता है। सो दैट जनरली हैव टू बी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के फॉर्म में आप उसका काम कर सकते हैं, दैट टू बी हैविंग। अब यहाँ पे देखिए दो तरीके के सर्फेसिस दिए हैं। ये दो सर्फेसिस में एक सर्फेसिस जो है उसमें आप यहाँ पे इमेज फॉर्मेशंस का एक कॉन्सेप्ट दिया है वो हम समझते हैं। उससे पहले ये जो 16.6 एक फिगर दिया है वो इसके बारे में समझते हैं। पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन टू द इरेगुलर सर्फेस। देखिए इरेगुलर सर्फेसिस में जैसे बुक है, आपका टेबल है, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपके रफ सर्फेसिस में होते हैं, और रफ सर्फेसिस पे जब लाइट ऑफ रेज इंसिडेंट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो ऑड इवन होता है। लेकिन जैसे पैरेलल सर्फेसिस है और पैरेलल सर्फेसिस के अंदर आप देखिए जो रेगुलर सर्फेसिस है उसका जो सरफेस होता है एकदम स्मूथ और पैरेलल होता है, इसीलिए लाइट ऑफ रेज का रिफ्लेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर पैरेलल फॉर्म में होता है। सो दैट जनरली हैविंग टू बी अ फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि जैसे इमेज जो है प्लेन मिरर से जो फॉर्म्ड होता है, इमेज जो है प्लेन मिरर से जब फॉर्म्ड होता है कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन है, इमेज कब जनरेटेड होता है? मान लीजिए इमेज जनरेटेड होने के लिए जैसे आप मिरर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो लाइट ऑफ रेज जो ऑब्जेक्ट के अंदर से इनिशिएटेड होता है और वो जैसे लाइट ऑफ रेज जो मिरर पे जाता है और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फिर से एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पे इमेज जनरेटेड होती है। ठीक है, तो इमेज जनरेशन इस तरह का फॉर्मेशन होता है। अब अगर प्लेन मिरर का आप यूज कर रहे हैं, जैसे दो तरीके के फॉर्मेशन आते हैं, उसमें प्लेन मिरर है उसके फॉर्मेशन के अंदर, तो एक ऐसे फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जैसे एक फॉर्म दिया है कि रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन अगर स्मूथ सरफेसिस पे होता है लाइक अ मिरर, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। उसमें आप देखेंगे कि जिस तरह के एंगल्स इंसिडेंट रेस के उसी तरह के रिफ्लेक्शन रेस के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं उसमें अलग अलग तरीके डायरेक्शंस में देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कि डू वी सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट होने की वजह से क्या हम सारे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? सो नियरली एवरीथिंग यू हैव टू बी सीन अराउंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, like moon for example receives light from the sun and reflects it, that's how we see the moon. The objects which shine in the light of other objects are called illuminate objects. So ऐसे बहुत तरह के objects होते हैं, तो there are other objects which give their own light such as sun, fire, flame, candle, electric lamp, they have their own light, and this their light which falls on our eyes, so that is how we see them. The object which emit their own light is called luminous object. उसको आप luminous object कहते हो। एक चीज ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझना है कि जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप देखते हैं जो इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, तो किसी भी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लेन मिरर से जनरेट होता है वो कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझना होता है कि हर एक इमेज का जो जनरेशन होता है उसमें दो चीजें होती है। उसके लोकेशन कहाँ जनरेट हो रही है, बिहाइंड द मिरर जनरेट हो रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर जनरेट हो रही है, उसका नेचर क्या है इमेज का, रियल है या इरेक्टेड है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, साइज क्या है उसकी, एनलार्ज है या सेम साइज है, डिस्टेंस कितना इक्वल है अनइक्वल है, लेटरल इन्वर्टेड इमेज है या नहीं है। दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जो नेचर होता है वो इमेज से जो जनरेटेड होता है लाइक प्लेन मिरर या स्मूथ उसके हिसाब से उस पर से हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज जो फॉर्म्ड होते हैं प्लेन मिरर से, उसमें एक चीज हमें समझना है कि अगर प्लेन मिरर से अगर इमेज का जनरेशन हो रहा है, इफ इमेज दैट फॉर्म थ्रू द प्लेन मिरर, तो वो इमेज हमेशा जो होगी द वर्चुअल इमेज जो होगी वो यहाँ पे जनरेटेड होगी और बिहाइंड द मिरर होगी, क्योंकि जो इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो वो रियल इमेज होती है, और जो इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, तो प्लेन मिरर से जो इमेज जनरेटेड होता है वो ऑलवेज भी बिहाइंड द मिरर होता है, और बिहाइंड द मिरर होने की वजह से उसका जो नेचर होता है वो वर्चुअल इमेज होता है, एंड दिस इज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन टू द स्क्रीन। अभी द साइज ऑफ इमेज जो होती है, इसकी साइज क्या होती है, साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट जो सेम होता है, आपकी जो साइज होगी वही साइज वहां पे दिखेगी, देयर इज नो एनी चेंजेस। द साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेम होगा, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा
और इमेज का जो हाइट होगा वो आपको सेम देखने को मिलेगा। इमेज जो फॉर्म्ड होता है प्लेन मिरर से, द इमेज विच इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्टेड एंड नॉट बी इन्वर्टेड। इरेक्टेड इमेजेस होते हैं और इन्वर्टेड नहीं होता है, इट इज कॉल्ड इरेक्टेड इमेज। दैट इज वाई लाइक योरसेल्फ विच इज अपराइट इनटू द प्लेन मिरर इज नॉट इन्वर्टेड। आप अपने आप को उसके अंदर आप देख सकते हो लाइक इरेक्टेड इमेज बट नॉट बी इन्वर्टेड, उल्टा आपको नहीं दिखेगा प्लेन मिरर के अंदर। द इमेज which will be generated in the forms will be formed as a far behind the mirror as the object in front of it। ऑब्जेक्ट जो सामने उससे काफी पीछे की तरफ जो है इमेज जनरेटेड होता है। दैट इज वाई यू फाइंड दैट व्हेन द यू मूव वेरी क्लोजर, जितना जितना आप क्लोजर जाते जाएंगे इमेज यू ऑल्सो बी सीम्स टू बी मूव क्लोजर, इमेज भी आपको उतना नजदीक आती दिखेगी। ओके, सो सिमिलरली व्हेन यू मूव अवे, जितना आप आगे जाते जाएंगे योर इमेज दैट इज ऑल्सो बी मूव अवे, इमेज जो है वो छोटी होती जाती है। That is one of the effect which can be generated by the plane mirror. The image which also be formed by a plane mirror is always be laterally inverted. Plane mirror से जो होगा वो laterally inverted होगा। It means when you move your right side of hand, it generally reflected onto the left side in their form. तो इस तरह का फॉर्मेशन जो है वो प्लेन मिरर से आपको देखने को मिलता है। तो यू कैन इजिली भी move or maybe seen the specific characteristics by the plane mirror which can be implementations their way कि कैसे वो implementations करता है और किस तरह का इफेक्ट जो है वहाँ पे जनरेशन देखने को मिलता है। तो इसमें जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि रेगुलर और जो इन्वर्टेड या रिफ्लेक्शन जिसको हम डिफ्यूज कह सकते हैं, जैसे अभी आगे मैंने आपको समझाया था एक वर्ड कि रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। तो एक चीज हमें समझना है कि लाइट ऑफ रेज अगर स्ट्रेट मूव कर रहा है तो उसको पैरेलल बीम कहेंगे, अगर वो इनसाइड ऑफ एंगल बना रहा है तो उसको कन्वर्ज ऑफ बीम कहेंगे, और अगर आउटसाइड ऑफ एंगल बना रहा है तो उसको डाइवर्ज बीम कहेंगे। अलग अलग तरीके के बीम्स होते हैं। सो व्हेन द लाइट फॉल्स और एंड इट इज ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड बाय द काइंड ऑफ सर्फेसिस, अलग अलग सर्फेसिस से वो रिफ्लेक्टेड होता है। सो द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉलिश सर्फेस लाइक अ मिरर, तो आप उसी इमेज को देख सकते हैं जिसका ऑब्जेक्ट एक पॉलिश सर्फेसिस मिरर पे से रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आपको इसको समझना है तो अलग अलग लाइट ऑफ रेज के बीम्स जो है वो इंप्लीमेंटेशन, लाइट ऑफ बीम्स क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ लाइट ऑफ रेज, अ ग्रुप ऑफ लाइट ऑफ रेज विच इज कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स इन अ सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ बीम ऑफ लाइट। एक ही सोर्स से ग्रुप ऑफ लाइट एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं, जिसमें पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम्स और डाइवर्जेंट बीम्स ऐसे तीन अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं। So when the parallel beam of light that falls onto the polished surface, एक polished surface इस पे होते हैं, reflect back into the one direction, अगर वो एक ही direction के अंदर reflected होते हैं, so whereas the parallel beam of light falls onto the rough surfaces, it cannot be reflected into the one direction, but it should be reflected into the many directions. So on the basis of these formations, we can be categorized. There is a two types, is called regular reflection और एक को कहते हैं diffuse reflection. So regular reflection is generally also called as a specular reflection. Regular reflection को आप specular reflection भी कह सकते हैं। It is the reflection which can be generated by the polished surface or smooth surface, जो एकदम smooth surface या polished surface उस पे से generated होता है। And reflected rays, जो rays reflected होते हैं which is parallel to the each other, एक दूसरे के parallel होते हैं। So it can be seen also in the mirror or on your stainless steels or plain or water, जो वाटर है या अनयूज्ड स्टेनलेस स्टील जो काफ़ी स्मूथी है वैसे जगह पे हमें प्लेन रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को दूसरे तरीके से हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, और ये रिफ्लेक्शन जो होता है इरेगुलर सर्फेसिस पे होता है, और ये डिफ्यूज होता है इरेगुलर सर्फेसिस अलग अलग डायरेक्शन के अंदर से अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं जो रफ सर्फेसिस होते हैं उसके हिसाब से वो काम करते हैं। अभी ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे देख सकते हो इसके बारे में हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है उसके बारे में हम समझते हैं। तो रिफ्लेक्टेड का अगेंस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम समझते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं, हाउ डू वी सी थिंग्स, हाउ इट शुड बी हाउ पॉसिबल। सो एक फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेटेड होता है, तो ये मल्टीपल इमेजेस से पहले का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा दूं कि हम इमेजेस को कैसे देख सकते हैं। So we have already studied in the previous classes that objects that emit light on their own are called luminous objects and the ones which don't are called non-luminous. जो अपना लाइट जनरेट करते हैं उसको luminous कहते हैं, जो लाइट जनरेट नहीं करते उसको non-luminous कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन है
स्टार्स है, टॉर्च है, बल्ब एटसेट्रा, ये सारे ल्यूमिनस है क्योंकि अपने लाइट को जनरेट करते हैं। जबकि चेयर्स है, टेबल्स है, बुक्स है, ये सारे नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि लाइट को इमिटेट नहीं करते हैं। सो ल्यूमिनस बॉडी इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। ल्यूमिनस बॉडी को आप सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं। सो नॉन ल्यूमिनस जो बॉडीज होती है जो अपने लाइट को जनरेट नहीं करती है, सो नॉन ल्यूमिनस बॉडी कैन बी सीन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूमिनस बॉडी। जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को जनरेट नहीं करते हैं वो कब देख सकते हैं, जब वहां पे लाइट ऑफ बॉडी यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर वहां पे है तभी आप वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सो व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द ल्यूमिनस बॉडी स्ट्राइक्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द नॉन ल्यूमिनस बॉडी एंड विच इज एंटर इन योर आई, जैसे हमारी आंखों के अंदर एंटर होता है, सो दिस रे ऑफ लाइट विच इज फॉल्स ऑन द रेटिना and it should be create a sensation, and that electric impulse of sensation that moves onto the brain and the brain interpret it as a part of image which formed onto the retina that should be when you see the object। तभी आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर लाइट ऑफ रेज है और अगर रिफ्लेक्ट होकर अगर रेटिना तक नहीं पहुंच रहा है फिर भी आप उस लाइट के थ्रू ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। वो हायर स्टैंडर्ड में आपको मैं समझाऊंगा। सो वी हैव वी सी द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द लाइट, it emits the non-luminous objects from the light that should be reflected, and hence we can be conclude that there are three necessary conditions for you have to use to see the object clearly। अगर आपको ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है तो तीन कंडीशंस जो है उसमें ध्यान रखना है। एक कि देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लाइट, वहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। द लाइट दैट मस्ट बी स्ट्राइक टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, वो लाइट ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करना चाहिए। And that light must be reflected from the object which is entered through your eye, तभी आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है आपका 16.5 वो दिया मल्टीपल इमेजेस के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि मल्टीपल इमेजेस क्या है, हाउ इट कैन बी क्रिएटेड। सो यू और मे बी जैसे लाइक योर मदर मेक्स अ न्यू हेयर स्टाइल, आपकी मम्मी आपका नया हेयर स्टाइल करती है विच हैव टू बी गो इनटू द पार्टी, पार्टी के अंदर जाने के लिए, एंड सी वांट्स इट शुड सी हाउ इट्स लुक लाइकिंग बट सी कैन नॉट बी सी योर बैक ऑफ हर हेड। वो आपके पीछे के हेड्स को नहीं दिखा सकती कि कैसा उसने हेयर स्टाइल किया है। ओके, सो हाउ विल यू हेल्प हर, आप उसको कैसे हेल्प करेंगे। मान लीजिए आपको पार्टी में जाना है, आपकी मम्मी ने नया हेयर स्टाइल किया है पर आप फेस पीछे करके आप हेड को नहीं, आप अपने हेड को पीछे करके क्या हेयर स्टाइल आप नहीं देख सकते। तो हाउ विल यू हेल्प हर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो इमेज का कॉन्सेप्ट आता है वो मल्टीपल इमेज का कॉन्सेप्ट आता है, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल इमेज। तो मल्टीपल इमेज के कॉन्सेप्ट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यू विल होल्ड अ स्मॉल मिरर, एक स्मॉल मिरर को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा एट द बैक ऑफ हर हेड, उसके सर के पीछे एक स्मॉल मिरर जो है वो आपको पकड़ के रखना है उसके हेड के पीछे। अभी क्या होगा कि जैसे आप स्मॉल मिरर को उसके हेड के पीछे पकड़ के रखोगे, सो सी कैन सी हर हेयर स्टाइल क्लियरली, उसको आपको दैट शुड बी सीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो जो हेयर स्टाइल है वो उसको मिरर के सामने दिखेगा। दिस इज जनरली बिकॉज टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जैसे आपके यहाँ पे इमेज में दिख रहा है जो हेयर कटिंग करने के लिए जो बंदा बैठा है वो हेयर कट करवा रहा है और उसका पीछे का हेयर स्टाइल कैसा है वो नहीं दिख सकता है, तो जो इमेजेस को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो एक पीछे रखा है और उसका रिफ्लेक्शन जो सामने की तरफ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ इमेजेस, जिसको आप मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभी जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, इट इज अ फिनोमेनन इन विच वी गेट द मल्टीपल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड बाय द वन मिरर एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इनटू द सेकंड मिरर। तो मल्टीपल ऑफ इमेजेस जो है वहां पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। वी कैन बी कंक्लूड द मल्टीपल इमेजेस दैट कैन बी इजीली फॉर्म्ड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्म। तो ये जो मल्टीपल ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं बाय द वन मिरर एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इनटू सेकंड मिरर, तो इसके लिए अलग अलग तरीके से नंबर ऑफ जो इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं बाय द टू मिरर्स, डिफरेंट एंगल्स पे आप अलग अलग इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो इमेजेस का 120 डिग्री का रेशियो है, 90 डिग्री, 60, 30, 0 डिग्री, ऐसे अलग अलग एंगल्स पे नंबर ऑफ इमेजेस को आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर नीड्स टू बी ओनली हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन्स होम और हिल टू सी ऑब्जेक्ट्स ऑल क्लियरली। एक जो उसका नॉर्मल हाइट होता है उस पर आप देख सकते हैं।
तो मान लीजिए अलग अलग एंगल्स पे अगर आप दो इमेजेस को पुट आउट करते हैं तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस जनरेट हो सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसके फॉर्मूला जो होता है n = 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1। जितना डिग्री का एंगल है उसका थीटा कहेंगे और सर्कुलर रोटेशन 360 डिग्री का होता है। तो अगर नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म्ड हो रहे हैं, इफ यू वांट टू बी फाइंड आउट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी फॉर्म्ड, यू हैव टू यूज n = 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। इस फॉर्मेशन का आप यूज करेंगे। मान लीजिए मैं दो इमेजेस को 72 डिग्री के रोटेशन पे रख रहा हूँ, तो थीटा = 72 डिग्री, सो n = 360 अपॉन 72 डिग्री -1, तो 5 - 1 4, तो 4 इमेजेस वहां पे जनरेट होंगे। सो व्हेन द रे ऑफ लाइट दैट इज पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट जनरली चेंजेस इट डायरेक्शन। वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ये जो डायरेक्शन चेंज होता है, इट डायरेक्शन चेंज इनटू द पाथ। ऑल्सो द लाइट ऑफ रे पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज जनरली कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन। उसको आप रिफ्रैक्शन कह सकते हो। तो ये जो आइडिया, जो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म्ड होते हैं बाय द मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ वन अनदर इज यूज्ड टू बाय द कैलिडोस्कोप and to make the numerous beautiful patterns. So you can also make a kaleidoscope yourself. आप कैलिडोस्कोप को आपके हिसाब से भी बना सकते हैं। यहाँ पे पूरा फिगर दिया है कैसे आप उसको बना सकते हैं। You have to be. So ये पूरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो कितने नंबर ऑफ इमेजेस जनरेट हो रहे हैं, अगर वो हमें जानना है तो उसका फॉर्मूला होता है n = 360 अपॉन थीटा -1। अभी जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो है लाइट्स के बारे में, जो सनलाइट। अभी सनलाइट जो है इट इज व्हाइट और कलर्ड, ऐसा दिया है। तो प्रीवियसली 7th स्टैंडर्ड के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सनलाइट इज रिफर्ड टू एज अ व्हाइट लाइट, एंड यू आल्सो लर्न इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। वो 7 कलर्स का कंसिस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द बैंड ऑफ 7 कलर्स। तो ये जो व्हाइट लाइट है, इट इज अ कंस्टिट्यूशन ऑफ अ 7 कलर। एक्चुअली है ये व्हाइट लाइट, इट इज अ व्हाइट लाइट, लेकिन उसके अंदर 7 कलर्स का कंस्टिट्यूशन है। अगर आप इसको 7 कलर्स को अलग करना चाहते हैं, यू हैव टू बी डिवाइड दैट ऑल 7 बैंड ऑफ कलर्स, तो उसके लिए हमें स्पेक्ट्रम का यूज करना पड़ता है। और स्पेक्ट्रम का यूज करके लाइक अ प्रिज्म आप उसको 7 कलर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लाइक अ विबग्योर, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। दिस इज द जनरली फॉर्मेशन ऑफ द कलर्स। तो इसमें एक चीज हमें समझना होता है, जैसे रैम्बो का जो फॉर्मेशन होता है, वो रैम्बो का फॉर्मेशन जो है उसमें एक चीज हमें समझना है जिसको हम डिस्पर्जन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जहाँ पे 7 कलर्स यहाँ पे आपको फिगर के अंदर दिख रहे हैं। सो हैव यू एवर बी ऑब्जर्व्ड द बैंड्स ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स और थिन ऑयल फिल्म्स ऑन वाटर विद द पडल्स? पानी के ऊपर छोटा सा ऑयल का ड्रॉपलेट है तो भी आपको 7 कलर्स दिखते होंगे, या आप व्हीकल को लेके जाते होंगे या सर्विसिंग्स पे, तो वहाँ पे ऑयल के ड्रॉपलेट्स अगर वाटर के सर्फेसिस पे है बडल्स के फॉर्म में, तो वहाँ पे कलर्स के कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस बैंड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज बोथ द टॉप एंड बॉटम लेयर्स of the oil which be film reflected by the white lights। ये जो टॉप और बॉटम्स पे जो थिन फिल्म ऑफ लेयर जो है ऑयल का, वो रिफ्लेक्टेड होता है। रिफ्लेक्टेड होने की वजह से ये जो है अलग अलग कलर्स को इस पे इम्प्लीमेंटेशन करता है। सो दिस स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द वेरियस कलर, वो एक व्हाइट लाइट सोर्स को अलग अलग कलर्स में डिवाइड करता है। सो द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। उसको आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। एंड द सेट ऑफ कलर्स फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। उसको स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म को आप जैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, द प्रिज्म इज अ मीडियम ऑफ ग्लास। प्रिज्म क्या है? मीडियम ऑफ ग्लास है। और ये जो लाइट का मीडियम जो है वो एयर का मीडियम के अंदर है। तो एयर के मीडियम के अंदर हर एक लाइट की वेलोसिटी सेम होती है, इसकी वजह से एंगल का डेविएशन आपको दिखता नहीं है, इसीलिए वो आपको बैंड ऑफ कलर्स नहीं दिखते। लेकिन जैसे ही व्हाइट लाइट जो है यानी कि ग्लास के मीडियम से वो एयर के मीडियम से वो ग्लास के मीडियम में जैसे एंटर होता है, when the white light that should be enter in from the surface of medium of air के मीडियम से जैसे वो ग्लास के मीडियम में एंटर होता है, तो क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है अलग अलग मीडियम के अंदर डिफरेंट होता है। तो ग्लास मीडियम एयर के मीडियम से ग्लास में एंटर होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगल जो है डेविएटेड होगा, और एंगल डेविएटेड होने की वजह से अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग लाइट्स जो वहाँ पे जनरेटेड होते हैं।
So we easily concluded the white light disappears into the spectrum of a 7 colors like into the violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. That is called as a Vip diode. So when these 7 colors mix again, ये सातों 7 कलर को अगर आप मिक्स कर दें, they form the white light. तो वो क्या जनरेट करेगा? व्हाइट लाइट को जनरेट करेगा. So we can also say that the prisms can split the white light into can be recoverable by 7 colors from the white light. यानी कि वो 7 कलर्स में डिवाइड भी कर सकता है और इस 7 कलर का कॉम्बिनेशन फिर से अगर आप प्रिज्म पे इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो इट विल जनरेटेड एज अ पार्ट ऑफ व्हाइट कलर. तो ये होता है पूरा का पूरा डिस्पर्जन्स ऑफ लाइट और पूरा जो आप कंपेरिजन करेंगे उसको रिकॉम्बिनेशंस ऑफ प्रिज्म कह के फिर से आप व्हाइट लाइट में कंसीडर कर सकते हो. यू कैन इजीली बी इंप्लीमेंटेशन इन द व्हाइट लाइट. तो ये पूरा डिस्पर्जन तो होता है. इसमें जो रेनबो का फॉर्मेशन जो बनता है, तो रेनबो का फॉर्मेशन जो बनता है तो रेनबो के अंदर जैसे आप देखो तो रेन शावर होता है. रेन शावर के बाद जो अपोजिट डायरेक्शन, सन के अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर आपको वो पूरा रेनफॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो रेनबो का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है. अब रेनबो का कॉन्सेप्ट जो है ऑलवेज अपोजिट टू द सन होता है और ऊपर 7 कलर्स को जनरेट करता है. तो कैसे जनरेट होता है? जैसे नॉर्मली रेन शावर होता है, रेन शावर के अंदर जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं और जैसे लाइट ऑफ रेज, सनलाइट का जो लाइट ऑफ बीम अगर उस वाटर ड्रॉपलेट पे इंसिडेंट करता है तो उस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होने के बाद अलग अलग कलर्स को डेविएटेड करता है जिसके वजह से वो रेनबो का फॉर्मेशन वहां पे देखने को मिलता है. दैट इज जनरली फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ह्यूमन आई के बारे में. ह्यूमन आई देखिए, वी हैव जनरली रीड आउट द रिफ्लेक्शन, ऑल्सो स्पेक्ट्रम, ऑल्सो डिस्पर्जन. ये सब आपने पढ़ा अभी. विच sense organs enables to see and experience all these things is generally eye. ये सब के किसके वजह से होता है? आई की वजह से होता है. आई इज अ नेचुरल वन ऑफ द स्पेक्ट्रम विच इज लाइक कंपेयर टू द कैमरा. आई का जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है इट इज जनरली इंप्लीमेंटेड बाय लाइक अ कैमरा. तो एक स्ट्रक्चर आप फिगर के अंदर दिख रहे हैं कि आपको आई का स्ट्रक्चर दिया है जिसमें ऑप्टिक नर्व्स दिया है, रेटिना दिया है, कॉर्निया दिया है, सिलियरी मसल्स, आइरिस है, लेंस है, प्यूपिल है, इन सब का अलग अलग काम होता है. सो ह्यूमन आई इज वन ऑफ द नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हुज कंस्ट्रक्शन इज जस्ट कंपेयर्ड टू द कैमरा. कैमरा जैसा कंपैरिजन ले सकते हैं. सो ह्यूमन आई इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल विद अ स्लाइड bulb in front of the implementation which is given into the figure 16.14 into your figure in your textbook. So in most of the cases it is 2.5 centimeter long, इसकी जो लेंथ होती है, and it has eyelids that acts a shutter which having to protect the dust and injury. ये जो शटर के फॉर्म में जो आईलिड्स होते हैं वो काम करते हैं किसी भी तरह का इंजरी और डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए. इंटरनली अगर आप देखें तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आप देखें तो इंटरनली वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है. इसमें हम पहले डिस्कशन करते हैं कॉर्निया के बारे में. कॉर्निया क्या है? इट इज अ जस्ट फ्रंट ऑफ द ब्लगिंग पार्ट ऑफ द आई एंड इट इज मेड विद द 3 ट्रांसपेरेंट टिश्यूज एंड इट कवर्स इन फ्रंट ऑफ द आई. वो कॉर्निया होता है. और जो इंप्लीमेंटेशन है आइरिस का उसके बाद इट इज अ कलर्ड पार्ट ऑफ आई which generally behind the cornea and it increase and decrease the size of pupil and control the amount of light which is enter into the eye. तो जो कॉर्निया होता है उसके थ्रू लाइट ऑफ रेज आंखों के अंदर आते हैं. आइरिस जो होता है वो जो लाइट ऑफ रेज है कितने अमाउंट तक उसको कंट्रोल करना है और क्या डिक्रीज और इंक्रीज करना है प्यूपिल की साइज को, वो कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है. नेक्स्ट आता है प्यूपिल. इट इज अ वेरी टाइनी hole in the middle of the iris. It allows the light enter into the eyes which is called pupil. सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है इसको हम कहते हैं लेंस. It is generally behind the pupil. Pupil के पीछे होता है and the iris. It is generally a transparent made of the many layers. Transparent और बहुत तरह के layers का बना हुआ रहता है. It generally focuses the light from an image on the retina. रेटिना पे इमेज को फोकस करने का काम जो लेंस करता है. उसके बाद आता है रेटिना. It is just lining just behind the eyeball and it acts as a screen for the image formation. वो स्क्रीन के जैसा काम करता है इमेज. It is sensitive of light of the receptors of the rods and cones. And when the light falls on the receptors, they send signals to the brain and through the optic nerves that implementation that interpreted as an image. उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स आता है
Optic nerves is a bundle of nerves just beginning from the brain and entering into the eyeball from behind it, and we generally used to be implementation the signals. Ciliary muscles, ये होता है कि the muscles which holds the lens of position, हमारी आंखों के लेंस का पोजीशन को कंट्रोल करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, वो काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स करता है। उसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट। इट इज अ पोर्शन ऑफ रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व्स एंटर्स द आईबॉल. It does not have any rods and cones and incentives of light, so image forming onto these spots are not visible, so it is called as a blind spot. इसको क्या कहोगे आप? Blind spot कहोगे, ठीक है? So that is the part of the blind spot. अभी क्या होता है कि ह्यूमन आई का वर्किंग कैसे होता है वो चीज हम समझते हैं. हाउ इट कैन बी वर्क. द लाइट ऑफ रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्ड द आई थ्रू द प्यूपिल. So a real inverted and highly dimensional image is formed onto the retina पे, and the rods and cones of the retina which get activated and convert the image to the electric impulse of signal. And while the signals that are taken by the optic nerves to the brain which can be implemented this thing and which can be sent once again to the optic nerves, and inverted image is once again re-inverted onto the brain, and that's why image helps to sense the object very clearly. तो इसमें दो चीजें हमें समझनी होती है जिसको हम कहते हैं persistence of vision. इमेज का persistence क्या है? Even after object is removed from in front of your eye, आपकी आंखों के सामने से अगर इमेज चला भी जाता है तो its image is retained on your retina from 1/6 of a second. सेकेंड का 1/6 पार्ट तक वो इमेज आपकी आंखों में रहती है. दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन. ये जो परसिस्टेंस ऑफ विजन, जैसे अभी अब क्या होता है, जैसे मूवी देख के आते हैं और मूवी देख के आते हैं तो उसके सीन्स और जो होते हैं वो आपके इमेजेस जो है वो घूमते रहते हैं. दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन. तो परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है इट इज द एबिलिटी ऑफ आई टू कंटिन्यू द सी द इमेजेस फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इवन इमेज विल बी रिमूव्ड. फिर भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है. दैट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेशन. तो यहाँ पे चीज जो है वो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं, इस फॉर्मेशन के अंदर हम समझ सकते हैं और इसके हिसाब से हम उसको काम कर सकते हैं. दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए. अभी यहाँ पे दो चीज और हम समझते हैं. एक होता है एकोमोडेशन. एकोमोडेशन ऑफ आई क्या है वो समझिए. सो इट इज इजी टू अ पर्सन with a normal eyesight to see the both nearby object and far object very clearly. नजदीक के ऑब्जेक्ट और दूर के ऑब्जेक्ट को काफी इजीली वो देख सकता है. This happens because the actions of the ciliary muscles on the lens. Ciliary muscles lens पे इजीली काम करता है. When the eye is focusing on far away of the object and the ciliary muscles relax and thickness of the lens reduces, this helps us the very object clearly which is very far away. उसको आप इजीली देख सकते हैं. On the other hand, when we look the object which is very close to us, the ciliary muscles it should be contrast and making the lens which is thicker, so which can be objects in clearly. But it in the formation, the ability of the eye or alter to the focal length that change its focal length position according to the image formation, that is called accommodation of an power of an eye. अगर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर हमारे सिलियरी मसल्स हमारे फोकल लेंथ को अगर एडजस्ट करता है तो उसको आप एकोमोडेशन कह सकते हैं. एटलीस्ट जो होता है कि डिस्टेंस विच अ नॉर्मल आई दैट कैन बी सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड एज द नियर पॉइंट ऑफ एन आई. 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट ऑफ आई फॉर अ नॉर्मल. The maximum distance at which a normal eye can see the object very clearly, that is called far point away, and that is a very infinite position. Like when you see the stars which is available in the sky, you can see very clearly that objects. तो ये persons के हिसाब से होता है. But क्या होता है कि some persons cannot be see the objects very clearly on the distance object or maybe the nearby objects. So that create the defect of visions. So like a nutritional deficiency हो सकता है, wrong reading habitat हो सकता है, एज का इफेक्ट हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, some other defects of vision that can be created. तो ये जो पूरा जो केयरलेसनेस होता है towards your eye that can be cause the eye defects. वो आंखों की बीमारियों को वो जनरेट करता है. So some of the defects of vision like a short sightedness, long sightedness और cataract, ऐसे तीन तरीके के इफेक्ट देखने को मिलते हैं. शॉर्ट साइटनेस क्या होता है? यू मस्ट हैव नोटिस दैट
कि some people holding a book or newspaper very close to their eyes. So this because happens because they cannot be see the far objects very clearly and suffering from the short sightedness or it is called as the myopia. अगर इसको रिकवर करना है तो हमें कॉन्केव लेंस का यूज करना पड़ेगा. वी हैव टू यूज द लेंस ऑफ कॉन्केव. दूसरा होता है लॉन्ग साइटनेस. सम पीपल कैन सी द ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली विच इज वेरी फार अवे, बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स दे कैन नॉट बी सी, लाइक इट शुड बी ब्लर उनको दिखता है. So this defect is generally having in the old ages people because ciliary muscles does not become thin or thick as per the recommendation. So that is the effect is called as a hypermetropia. Okay, that is also called as a long sightedness. अब अगर दोनों बीमारी है, नजदीक का भी ना दिखे दूर का भी ना दिखे, तो उसको क्या कह सकते हैं? उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेस बायोपिया. तो उसमें बायफोकल लेंस का यूज करना पड़ेगा, ऊपर कॉनकेव नीचे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा. एक और इसमें इफेक्ट आता है जिसको हम कैटरैक्ट कहते हैं. समटाइम्स इनटू द ओल्ड एज द आई लेंस बिकम्स वेरी क्लाउडी एंड ऑब्लिक्स लीडिंग अ वेरी ब्लर्ड एंड लाइक अ डैम्ड विजन्स. You cannot be see the objects very clearly and sometimes you lost to see the visions. So cataract that can be treated by the surgically or through the laser replacing by the eye lens with a new artificial lens. उसके थ्रू ही हम इसको रिमूव कर सकते हैं and by using that we can be implementation. तो हमें हमारी आंखों का केयर करना चाहिए. It is necessary that you take the proper care of your eyes. If there is any problem you should go to the eye specialist. Like regular checkup है. If advised use suitable spectacles. Too little or too much light is bad for your eyes. Insufficient light also cause the eye strain and headache. Too much light also like the suns and the like of powerful formations, it also be creating some of the form. Do not look at the sun or maybe a powerful light directly. Never rub your eyes if particles does go into your eyes. Wash your hand. Always be at a normal distance of vision. These are the we have to be taken care. Okay. Now, next topic 16.9, that is called visually impaired persons can read and write. That is called visually challenged people. Visually challenged people. Now, visually challenged people means what? So, visually challenged people are those whose vision is extremely poor or they are blind. That is called visually challenged people. So, they are unable to see because their cornea, eye lens or retina or the optic nerves that fails to perform the functions properly. और जो functions से properly perform नहीं कर रहे, इसके वजह से effect होता है. So these people make use of another sense like touch or hearing or maybe a man-made aids to identify that things. So this can be categorized into the two types. One is called non-optical aids, another is called as optical aids. दो तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे हमें यूज करने, तो नॉन ऑप्टिकल और ऑप्टिकल एड्स जो है उसके बारे में हम समझते हैं. तो नॉन ऑप्टिकल एड्स जो है वो इंक्लूड करता है लाइक विजुअली फॉर्मेशंस, ऑडिटरी, टैक्टुअल, इलेक्ट्रिक्स, उसके बारे में समझते हैं. तो विजुअल जो होता है दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड साइज ऑफ वर्ड्स, एप्रोप्रिएट लाइट इंटेंसिटी और मटेरियल टू द प्रॉपर डिस्टेंस पीपल हु विजन इज एक्सट्रीमली पुअर. उसके बाद ऑडिटरी में क्या होता है कि दिस एड्स इंक्लूड्स द टैप रिकॉर्डर है, कॉम्पैक्ट डिस्क है या टॉकिंग बुक है, इसके हिसाब से वो अपने स्टडीज को इम्प्लीमेंट करते हैं. टेक्चुअल मेथड क्या है? टेक्चुअल यानी लाइक अ मेथड ऑफ सेंस. दे इंक्लूड लाइक ब्रेल राइटर, स्लैट और स्टाइपल्स. दिस हेल्प्स टू इजिली दिस टाइप ऑफ चैलेंज पीपल टू रीड एंड राइट. उसके अलावा एक आता है इलेक्ट्रिकल एडवर्टाइजमेंट मेथड. सो दिस टाइप ऑफ एड्स सच एज टॉकिंग कैलकुलेटर्स for the calculations, closed circuit television like a CCTV for enlarging of the printing material, voice boxes and the computers from the studies materials, that all are included into the electronic forms. This is called as a non-optical aids. Optical aids क्या होता है? Optical aids that can be cause or curable of blindness people whose vision is extremely poor. सो उसके लिए आप लेंसेज का यूज कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग या टेलीस्कोप का भी यूज कर सकते हैं. लेंसेज में क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेज लाइक अ बायफोकल लेंस और कॉन्टैक्ट लेंसेज और मे बी द टाइनेड लेंसेज विच कैन बी यूज्ड टू रिकवर दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स. और ऑल्सो वी हैव यूज्ड द मैग्नीफायर्स और टेलीस्कोप पिक्स which have been implemented the visually challenged peoples to view on a chalk box and classroom for the demonstration. So that is about the
implementation that can be implemented by the visually challenged people. Like next topic that we are discussing about the Braille system. Braille system क्या है? The most common non-optical aids which used to visually challenged people is called as a Braille. It is a tactile aids which generally used to based on to the sense of touch. Touch करके वो implementation करते हैं कि इसका identification क्या है. The Braille system which was developed by the Louis Braille. यहाँ पे आप उनका फिगर देख सकते हैं, which is also himself a visually challenged people, और उन्होंने पूरा एक स्टडी मटेरियल जो है इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन किया था फॉर द विजुअली चैलेंज पीपल, जिसका नाम था लुइस ब्रेल. सो दैट विल बी जनरली इन फ्रांस ऑफ 1821. ही हिमसेल्फ वाज अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन. ब्रेल इज एन अप्रोच दैट enables the blind people to read and write. In this text is printed on a thick sheet of paper and in form of pattern of raised dots. The dotted symbol represented the letters, the numbers, punctuation mark, etc. There are 63 symbols or characters which can be included into the Braille. Each symbol is represented by the cell which consists the two vertical rows of 3 dots. Okay, and each which is generally you have to see it onto your screen as a part of figure. One or more dots in a cell may be embossed or may be raised to symbols which is also been a figures. A visually challenged persons that can fill this raised of dots with the fingers and recognize the letters. So this way they are able to read the books and text are printed into the Braille. So Braille can produced and hand or by using machines like a typewriter or computers. A plain English text can also be converted by the Braille by using the special computer software, special keyboards based on the Braille available to from the blind now. So Braille code has been developed for the common languages like mathematics and the specific formation of scientific notation. That should be a Braille system. Also some of the famous slide impaired people like Helen Adam Keller, Steve Wonders, Maria Runen, Ravindra Jain. These are the people who are physically challenged and they have to be implementation, very good implementation in the forms, right? So this is the form. Now also we have to be take care of the nutrition of eyes. Like it is important to eat a very balanced diet with a sufficient quantity of vitamin A to keep your eyes healthy. So raw carrots, broccolis, green vegetables, cod liver oil, eggs, milk and milk products, fruits like a papaya and the mango are one of the rich sources of vitamin A, vitamin C and vitamin E, which are also good for the nutrition of eye and the healthy eye. So you have also been taken care to the eye care and the nutrition what we have to be implementation to the good eye. So this is the chapters which we have to discuss in today about the light. I hope you have been understand what the concept of light that gives the specific formation of declaration. I hope कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा. तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए. इसको अच्छे से रीड करने के बाद जो आंसर्स लिखने हैं एक्सरसाइज में वो अपने ऑन वर्ड्स में आंसर्स लिखने का ट्राई करें और जितना हो सके टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें और उसके बाद आंसर्स को लिखें. Once again, I request you to stay home and stay safe. Don't go unnecessary outside your homes. Use a specific form of mask, take sanitizers, wash your hand at a specific regular time of interval, and improve your knowledge by using digital medium of learning is also a necessary part in your right now in your home situations. Okay, so once again students, take care. We'll meet next time with another topic, with another chapter. Take care and we'll meet tomorrow with another topic. Then students, take care and bye.